ओ भाई बोलने वाले को पीछे रखो ना मेरा। આપણે અમે અહીંયા બધા જવાનો જમા થયા છે એનું કારણ એ છે કે અમારું કહેવાનું મતલબ એક જ છે, એક તો સરકાર અને પોલીસ અધિકારી એવું કહે છે કે અમે પબ્લિકની સેવામાં છે, આવી તમારી સેવા કે આટલી હાઈ સિક્યોરિટી હોવા છતાં જેલની અંદર એક માણસનું મર્ડર થઈ જાય છે, હત્યા થઈ જાય છે, બરાબર. એમની પાસે હથિયાર આવ્યું ક્યાંથી? સૌથી પહેલો એ સવાલનો વિષય છે, બરાબર. ને બકરીનું બચ્ચું ગયું નથી, માણસ ગયું છે, બરાબર. જેનું ગયું એને ખબર હોય, બરાબર. સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ અહીંના છે, અહીંયા આવીને વાત કરતા નથી બહાર. પબ્લિક જવાબ માંગે છે અને પૂછે છે કે સીસીટીવી બગડી ગયા છે. આવી કેવી તમારી સિસ્ટમ કે સીસીટીવી બગડી ગયા છે તમારા? અમારી માંગ છે કે અમે સીસીટીવી જોઈશું. અમે લોકો મને ન્યૂઝના માધ્યમથી મળ્યું 10:15 થી 10:30 વાગે, બરોબર છે. પબ્લિક ત્યાં એસએચજીમાં ભેગી થઈ 11 થી 12 વાગે. હવે મને લાગે છે કે જે રીતે એમને વાગ્યું છે તો બ્લડ નીકળ્યું એ 2 થી 3 કલાક પહેલાંની ઘટના હશે, લગભગ 8 થી 8:30 વાગ્યા સુધી. ત્યાં સુધી કોઈને ઇન્ફોર્મ કરવામાં આવ્યું નથી. બધાને ખબર પડી 11:30 થી 12 વાગે, બરોબર. તો આ દરમિયાન સુધી અહીંની પોલીસ અધિકારી લોકો કરતા શું હતા, સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ સાહેબ શું કરતા હતા, એ અમારે જાણવું છે. જેલ પ્રશાસન માટે અમે અન્યાય જોયા, અમારી સાથે અન્યાય થયો છે, અમને ન્યાય જોઈએ છે સાહેબ. અને હું સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટનું આગેલા સાહેબ એ 7 લાખ રૂપિયા લીધા છે અજ્જુભાઈ પાસેથી સેવા માટે તમારે મોબાઈલ યુઝ કરવા માટે અને અંદર ફેસિલિટી આપવા માટે 7 લાખ રૂપિયા અજ્જુભાઈથી સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ આગેલા સાહેબે લીધા છે. બધી ફેસિલિટી આપી હતી 7 લાખ રૂપિયા લઈને. મોબાઈલની, ખાવાની, નોનવેજની. નોનવેજ અંદર જતો નહીં, પણ અજ્જુભાઈ માટે સ્પેશિયલ નોનવેજ જતો હતો અંદર. 7 લાખ રૂપિયા લેવા પછી જામર ચાલતા નહીં, પૈસા લઈને જામર એમનો બંધ કરી દે છે, એમના એરિયાનો. એ જામર પૈસા લઈને બંધ કરી દીધા હતા. હા, અમારા જેલના સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ છે, એમની હવે અંદર દાદાગીરી એવી થઈ ગઈ છે કે પોતે સ્વામિનારાયણ છે, બરાબર. સ્વામિનારાયણ છે તો સ્વામિનારાયણ કે તમે બી સ્વામિનારાયણ બની જાઓ એવું કહે છે. તો એ અહીંયા ઈંડા ને બધું આવતું હતું, એ લોકોએ બંધ કરાવી દીધું. કેન્ટીનમાં વેચાતા હતા ચિકન ને ઈંડા, એ બંધ કરાવી દીધા. પછી જ્યારે કેદીઓએ રજૂઆત કરી કે સાહેબ આ ઈંડા બંધ કર્યા, તો કે ભાઈ હું સ્વામિનારાયણ છું એટલે બધું નહીં ચાલે, એવી દાદાગીરીઓ કરતા હતા અંદર બધી. ને ફોન ચલાવવો તો તમે પૈસા આપો. મર્ડર ક્યારે થયું, શું કેવી રીતે, અને તમને જાણ છે કે કઈ રીતે કયા હથિયારથી એમને મારવામાં આવે? મર્ડર કોઈ ધારદાર હથિયારથી થયું, એ બી સવારે 7 થી 7:30 થયું છે. પોલીસનું કેવું છે કે પતરું ગળામાં મારવાથી એમનું મોત થયું છે. પતરું ગળામાં મારે, પતરું બનાવતા કેટલો ટાઈમ લાગે, બરાબર. ટાઈમ લાગે તો રોજને 2 ટાઈમ ઝડતી કરે અંદર જેલમાં. દિવસમાં 2 ટાઈમ ઝડતી કરે તો ઝડતીમાં પતરું પકડાયું કેમ ના? જે રીતે જેલ પ્રશાસનમાં રૂપિયા લઈને મોબાઈલ યુઝ કરવાની વાત આવે છે, શું કહેશો? ભાઈ આ જેલમાં હમણાં 2 મહિના પહેલાં આજે ગેટ પર નોકરી છે પેલા સિપાહીની, એની મગજમારી થઈ હતી અજ્જુભાઈ જોડે. તો એ લોકો બધા જ જેલનો સ્ટાફ બધું અજ્જુભાઈને મારવા માટે ઊભા થઈ ગયા હતા એક તરફા. કેટલા લોકો જોડે એમની આ ઇસ્યુ ચાલતો હતો, કઈ રીતે બધા દુશ્મન સમજતા હતા એમને. ઝઘડો કઈ રીતે થયો હતો? આ કાણીઓ બોલ્યો હતો પેલા અજ્જુભાઈને, એ બાબતે ઝઘડો થયો હતો. કાઠિયાવાડી સાઈડ ચલાતી હે, તો કાઠિયાવાડી જે છે એ બધું વન સાઈડ ચલાવે છે. કાઠિયાવાડી લોબી ચાલે છે. આ લોકો સિપાહીઓ જેટલા છે કાઠિયાવાડી લોબી ચાલે છે. આ લોકોની અંદર ને બધી તોડપાણી થતા રહે છે. જે રીતે કહેવામાં આવે છે કે વહેલી સવારે મોત થયું હતું, 4 કલાક મૂકી રાખવામાં પ્લાનિંગથી થયું છે. અત્યારથી કાપડો પોલીસ મળેલી છે, એમાં કાપડાથી થયું હતું. ભાઈ બધા અહીં નીકળી જજો, મોટા અધિકારી આવો, તકલીફ પણ જરા નીકળી જાઓ, ફટાફટ જાઓ. કહેતા નહીં પછી જો પરિણામ ભોગવવું પડશે ખોટું. હા, તમે બધા અંદર બેઠા છે પણ બહુ છે.
बाहर काटते थे। कौन काटता था? ये जेलर खुद जेलर जेलर आपके पास से पैसा मांगता था? बहुत मांगे जेलर ने, तो अभी तक पैसा मांगे उसके अंदर रखा है। पैसे बिना उसका एक काम नहीं होता है अंदर, पैसे बिना कुछ काम नहीं करते। मेरे भाई को 8 बजे से मार के इन्होंने 11 बजे बड़े दवाखाने में भेजा है। क्या कारण से भेजा है? आपके पास में फोन आता था? फोन 2 रोज आते थे, जेलर कराता था फोन इसके डब्बे पे से। अखबार में 2 बार भी कराता था इसको फोन पैसों के लिए। मरने वाला व्यक्ति वो बात करता था आपसे? हाँ करता था। कल शाम को मेरे पास 5:30 बजे बात करी मेरे साथ। क्या बताया उसने? कुछ नहीं, उसने ऐसा कि मैं अच्छा हूँगा, मेरी फिक्र ना करे, तुम घर का देखियो, घर से टेंशन मेरे को बोलते तो तू घर का देखियो, मैं अच्छा हूँ, मेरी फिक्र ना करे तुम। जेलर पैसे मंगाता था तो कोई लेना आता था आपके पास में? पुलिस वाले लेना आते थे यहाँ के। कौन सी जेल से? ये सेंट्रल जेल के पुलिस वाले आते थे ना, कोर्ट नंबर देता था 123 423 ऐसा कोर्ट नंबर देता था ना, तो लोगों को कोर्ट नंबर बोलते थे, तो इनको पैसे देते थे। कितने पैसे दिए तुमने अभी तक? बहुत पैसा ले गए, कम से कम 15-12 लाख 15 लाख तो ये ले चुके अभी तक इसके 1.5-2 महीने में। तो ऐसा है? एक चीज़ का पैसा लेते थे, एक चीज़ का हमारे पास। कल जिसके कपड़े मंगाए ना तो हमने दिए तो 15,000 दो तो हम तुम्हारे कपड़े जाने देंगे, कपड़े की थैली जो घर पे ही। ऐसा है? अभी जेल पे आप आए हो तो आप क्या कार्रवाई के लिए आए हो? जेलर ने सब कराया। सादे का सिंधी, सलीम लंगड़ा सिंधी, दोनों ने मिल के जेलर के साथ 5 दिन पहले यहाँ जेल पे आके गए। दोनों बातचीत जेलर से करके गए। सादे का सिंधी जिस उसके साथ सो जाती है, वो सोने वाली औरत है, वो सबके साथ यही काम करके करती है। पुलिस आता है सबसे, तो मेरे भाई का उसने ही कराया, ने जेलर ने मिल के कराया, दोनों ने सबने मिल के कराया। क्या नाम है आपका? मैं परवीन सिंधी। हाँ जी, क्या घटना हुई है आपको? मेरे भाई को 8 बजे से ऐसा हुआ था। 11 बजे क्यों कंफर्म करा के 11 बजे इसको ऐसा हो गया? 11 बजे क्यों खबर थी हमारे को? जब 8 बजे उसका गला कट गया तो 11 बजे कैसी खबर? पैसे की मांग? पैसे तो 15 लाख रुपए ले चुके अभी तक। किस बारे में पैसे लिए जा रहे ये कि आज इसका ये काम हैगा तो पैसे देने पड़ेंगे। आज तुमको बाहर निकाले फिरने देंगे तो पैसे देने पड़ेंगे। आज तुमको काल कोठरी में डालेंगे तो 2 लाख दो। आज तेरे को फोन करना है तो 5,000 एक फोन का 5,000 देता था खाली इसकी माँ की खबर पूछने के लिए। पैसे लेके किस तरह की यहाँ से पुलिस वाला आते थे ने, कोर्ट नंबर लेके भेजता था ये जेलर के 123 बोलियो 124 बोलियो, ऐसा कोर्ट नंबर लेके आते थे ने। फोन पे कहता भी था कि 124 बोले तो उसको इतना 1,000 दे दियो, 122 बोले तो उसको इतना 1,000 दे दियो। मैं खुद मेरे हाथ से पैसा कंफर्म करती थी, देती थी। देने के लिए पैसा देने के लिए कौन आता था? वो खुद लेना आते थे वहाँ बाहर मांडवी के रोड पे। कम यहाँ खड़े तुम आके यहाँ पे दे जाओ। यहाँ से मांडवी आते थे और आपको कोडवर्ड देते थे और उस कोडवर्ड के आधार पे और उस जो पैसे लिए जाते थे उसमें किस किस तरह की सुविधाएं दी जाती थी? क्या मोबाइल? सब चीज़ की सहूलत दी जाती थी, खाने पीने की, इसको फिरने की। इसको बाहर वो काल कोठरी में डालते थे ना तो बाहर निकालने के 2 लाख रुपए उसके। तो बाहर निकालेंगे तेरे को घूमने देंगे तो 2 लाख। तू अंदर 12 नंबर की तम्बाकू ने पड़ी की तो हमने इतनी भेजी है ना कि कुछ हद नहीं। उसके तो एक पड़ी की जाती थी ना उसके 500 रुपये, जाने कितनी सारी भेजते थे ना तो हजारों सी बातें होती थी इनकी। पड़ी की एक पड़ी की खाने नहीं देते, पैसा देते थे तो हजारों पड़ी के अंदर जाती थी। 2 लाख रुपए में बाहर लाने की बात थी तो क्या वो जेल से बाहर लेके आते थे? नहीं, जेलर जने अंदर काल कोठरी में से काटने के लिए कि इसको काल कोठरी एक उसमें डालने के, उसकी जगह पे सबके साथ 12 नंबर इसको डाला, हाई सिक्योरिटी में से डालने के। लास्ट आपने कब पैसा दिया? लास्ट हमने अभी परसों दिया है। जेलर ने खुद ने साइकिल भी ली है मंगल बाजार से, मेरे खुद ने दिलाई साइकिल। जेलर ने? हाँ, जेलर ने फोन करा था कि मेरे लड़के के लिए साइकिल दिलाने। ये भाई ने मेरे को फोन करा था, अज्जू भाई ने, कि कौन सी साइकिल ली थी आपने? ये नए अपने बाजार में सी, साइकिल बाजार में सी। कौन लेने आया था साइकिल? पुलिस वाले आए थे लेने। किस नाम से साइकिल ली गई थी? ऐसा बोला था कि हमको तुम्हारे को कॉल ने सब कराना है ना तो हमको साइकिल दिला दे मेरे लड़के के लिए। तो भाई ने कहा तू दिला दे, तो मैंने दूसरे भाई को बोला, उसने दिला दी। कौन सी दुकान से साइकिल खरीदी? वो अभी तुमको मैं बताऊंगी वहाँ जाके सब। क्या मांगे आपके? आप यहाँ पर से? मैं मेरे भाई का इंसाफ चाहती हूँ कि 8 बजे का उसका गला काटा हुआ था तो उसको 11 बजे हॉस्पिटल क्यों ले गए? उसका पूरा ब्लड निकल गया, उसके बाद क्यों ले गए? पुलिस का कहना है कि पथरा मार के उसको। पथरा नहीं मारा, उसको छुरी मारी अंदर से। छुरी आई कैसी अंदर? छुरी थोड़ी अंदर आती है। एक ताबीज नहीं जाता वो पहनता है वो, तो इसके अंदर छुरी कैसी गई? एक पड़ी की नहीं जाती, एक तम्बाकू नहीं जाता, अंदर से छुरी कैसी गई? तो क्या सबसे पहली बात तो मेरी ये है कि जिस तरह से पथरे मारने की, पथरा लगने से मौत। पथरा से नहीं है, छुरी से। छुरी तेजदार छुरी। मैंने इसका गला देखा एम्बुलेंस में बैठ के। मेरे भाई की क्योंकि मेरा भाई कभी भी कोई की मार नहीं खाता। क्या नाम है आपकी? मैं परवीन सिंधी, अज्जू की बहन हूँ। मैं इसके साथ ज रहती हूँ, हमेशा मैं इसके साथ ज होती हूँ सब चीज़ में।
नहीं जेल पे से भी कॉल आता है तो मैं ही बात करती हूँ सब चीज़ की, मेरी मम्मी नहीं करती। इसका कोई रिकॉर्डिंग या ऐसा कुछ होगा? मेरे पास रिकॉर्डिंग है जूने मोबाइल में, इसकी फ़ोन की बात करता है वो सब। अच्छा, आपके पास में उनका नंबर है? हाँ डब्बे का नंबर है मेरे पास। डब्बे का नंबर है? हाँ डब्बे का नंबर, शाम को भी फ़ोन कराते घर पे, शाम को फ़ोन कराते थे ये लोग, पैसे दे के उसको शाम को फ़ोन कराते थे कि ले तेरे घर बात कर तू, कौन उसको पैसा मिल रहा। 5:30 बजे आया कल फ़ोन, 5:30 बजे का छिल्ला फोन आया। छिल्ला फ़ोन 5:30 बजे आया। इसने क्या मैं बहुत अच्छा, मेरी फिक्र मत करियो। क्या मांग है आपकी? मेरी मांग ऐसी है कि मेरे भाई को 8 बजे से मारा है तो इन्होंने 11 बजे क्यों डिक्लेयर करा? लगा था तो वही टाइम पे हमको कॉल करना चाहिए ना कि भाई ऐसा हुआ है। मेरे भाई को 11 इतनी कलाक बाद उसका ब्लड पूरा गले में से निकल गया, जब क्यों किया? मेरे भाई को ऐसा कैसा इन्होंने मारा? पुलिस क्या कर, जेलर ने ऐसा क्या करा कि अंदर उसको रेन दिया? बाकी एक जरा कोई को लगता है तो तुरंत बाहर खबर पड़ जाती है। 12 नंबर में उठा नहीं जाता। जो लड़के ने मारा है वो लड़के के आप कार्रवाई क्या करना चाहते हो? मैं तो उसको अच्छी सजा दिलाऊंगी, जो मेरे भाई के साथ उसने करा है ना, मैं उसको सजा जेलर को भी दिलाऊंगी। फांसी के साथ जो जेलर है वो सस्पेंड अभी उसको सस्पेंड करा जाए। जहाँ तक अगर आप सस्पेंड नहीं करेंगे वहाँ तक हम बॉडी नहीं लेंगे हम। बॉडी लेने के हमारे को कोई उतावल नहीं है, क्योंकि मेरा भाई कभी भी किसी की मार नहीं खाता। आज उसको धोखे से मारा गया, वो भी जेलर ने ही मारा करा है। क्योंकि सलीम सिंधी ने सादेगा सिंधी 5 दिन पहले यहाँ जेल पे आके गए, अंदर बैठ के बात करके गए। एक छोटा सा मामूली से इंसान के ऊपर नाक दिया है, 4-5 जन ने मिलके मारा है, फिर भी एक जन का नाम बता रहे। जेलर साहब की शादी से इसके अंदर सब मिले हुए हैं, सभी ने मिलके ही मारा है। यहाँ तक के परमार साहब ने भी हमारे पास से बहुत से पैसे लिए, बहुत से घुमा फिरा के हमारे को ये कर देंगे, वो बता देंगे, ये केस बता देंगे। अभी तो कोई पता नहीं, आज इंसान को बता दिया इन लोगों ने, लेकिन केस नहीं पता है हमारा। हम अपील यही करते हैं कि जितने भी इस केस के अंदर शामिल है वो सारे के सारे सस्पेंड हो गए, सारे के सारे सजा में आवे, और जिसने भी ये मर्डर करा है अभी तक मेरे भाई का पूरा पुलिस खाते नहीं करा है, सबको फांसी मिले, यही हमारी अपील रहेगी। बॉडी हम अभी अपील नहीं करेंगे, पुलिस हमारा सुनती नहीं। हम कभी भी हमारे भाई के इंसाफ के लिए जाते नहीं, तो हमने न्यूज पे भी डाला था केस हुआ था तो पुलिस इंसाफ करे मेरे भाई का, पर पुलिस ने कोई सुना नहीं है। बड़ी बात नहीं होती, इंसान 10 मेरे भाई का इतना सारा बांट देता है, उस इंसान के ऊपर 5 लाख 10 लाख की खंजरी हर बार डालते हैं, कोई मतलब की नहीं थी। लिखने वाले लिखते थे, सोचे ना के लिए था कि जेल में वो 10-15 लाख खर्चा कर सकता है, तो 10 लाख की खंजरी कैसे मांग लेगा? ये सब दिखावा था। आज इंसान की मौत के ऊपर लोग तमाशे बना रहे हैं। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसको सस्पेंड करें और जल्द से जल्द इसका हमारा खुद का धंधा है, थोड़ी करेंगे। लेंगे नहीं, हमारे रोज का धंधा है, हमारे रोज का कनेक्शन का धंधा है। मेले में हमारा कनेक्शन बिजनेस है, केबल कनेक्शन। का धंधा क्या है? केबल कनेक्शन दोनों भाई मिलके करते हैं हमारा, दोनों भाई। हाँ, ने जमीन का भी करता ही है। तो जमीन में छोटू भाई सिंधी ने केस करवाया है, वसीम अब्दुल रहीम भाई सिंधी ने ये सब फंसाया है इसको। ने इसको मारने की दूसरी बार साजी है, एक बार वाड़ी में भी ले गए, तो कोरोना के लिए भग गया। इसको 1:30 बजे मारने के थे तो ये भग गया। हमको ने तीसरे दिन खबर दी कि अज्जू भग गया है। हमको दिन भी जान नहीं करी, अक्खा दिन जान नहीं करी इन्होंने कि अज्जू भग गया है। खाली इकबाल को ढूंढते करके इन्होंने 2 दिन रैंक फराया। तीसरे दिन पुलिस वाला कहते अज्जू भग गया, तुमको नहीं खबर? मैं कहा हमारे को नहीं खबर, अज्जू का है, हम तो तुम्हारे पास था ना, वही हमको खबर है। सब ये प्लानिंग मर्डर है, सब अंदर प्लानिंग करके जेलर ने, सादेगा सिंधी, सलीम सिंधी, ये सब अंदर मिले, पुलिस वाले सब मिले हुए। ये सब अज्जू की गैंग है ने 4 महीने पहले जमाने की थी, अभी इनका मकसद पूरा हो गया है। मतलब मेरे को इंसाफ चाहिए कि ये क्यों ऐसा हुआ, ने क्या कारण से हुआ। 12 नंबर में पतरा कहाँ से आया?